हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਏ ਬੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਦਾ। ਇਫ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ n ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਏ ਇਜ਼ ਸੈਡ टू बी फाइनाइट ऑर्डर, मतलब वो एक फाइनाइट ऑर्डर हैगा एंड स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर n विद इट्स दिस प्रॉपर्टी सच दैट a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू e इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ a डिनोटेड बाय ऑफ a। समझ गए की हुंदा। सो ए कोई एलीमेंट है किसी ग्रुप का जो दी पावर तुसी एक इदां दा कोई नंबर कर दिओ n सच दैट कि वो किहदे इक्वल टू आ जावे आइडेंटिटी एलीमेंट दे, ठीक है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਸੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ n ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਰਡਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਇਫ ਦੇਅਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ n ਸੱਚ ਦੈਟ a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ e ਦੈਨ a ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਹੈਵ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆਰਡਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ n ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਪਾਵਰ n e ਆਵੇ, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट दी पावर करके ई आ ही नहीं रहा। ਇਹਦਾ मतलब a इज सैड टू हैव इनफाइनाइट ऑर्डर। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫਾइनाइट ऑर्डर ਹੈਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਤਾਂ ਉਹ n ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ, ਬਟ ਜੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾइनाइट ऑर्डर। ਤੇ ਇਨੇ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 1। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਲੈਣਾ 0, ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ 1 ਲੈਣਾ आइडेंटिटी एलीमेंट। सो हमेशा आइडेंटिटी एलीमेंट जोड़ा भी होएगा ਉਹਦਾ ऑर्डर तो हमेशा की रहना 1 ही रहना, ये याद रखियो। इन केस ऑफ एडिटिव नोटेशन द अबव टर्मिनोलॉजी said to be let a be element of group G if there exists a positive integer n such that n equal to e then a is said to be have finite order। ਜੇ ਇਦਾਂ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ finite order ਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ n equal to 0, ठीक है ना। देखो ਹੁਣ डिपेंड करता कि मल्टी ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਦਾ। ਇਫ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਸੱਚ ਦੈਟ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆਰਡਰ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਸੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ n ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੱਚ ਦੈਟ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡਰ ਆਫ a ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ o a। ਇਹਨੂੰ o a ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਇਹਦਾ o a ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ। ਇਫ ਦੇਅਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੈਟ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਦੈਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆਰਡਰ। ਕਲੀਅਰ। इन केस ऑफ एडिटिव नोटेशन तो दिता होया एग्जाम्पल आ एक ग्रुप आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਰਡਰ 1 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1 ਫਸਟ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ 1 ਆ ਤੇ -1 ਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਬਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡੂ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 1 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ 2 ਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ 0 1 2 3 4 5 अंडर द मॉड्यूलो 6 है, ठीक है, प्लस मॉड्यूलो 6 के अंडर हैगा तो यदा हर एलीमेंट का ऑर्डर होएगा। देखो हम 0 0 तो वो देखो अंडर एडिशन आ अंडर एडिशन 0 की आइडेंटिटी एलीमेंट होंदा तो आइडेंटिटी एलीमेंट का ऑर्डर हमेशा कितना होंदा 1 होंदा। तो 1 की गल करते हैं 1 का ऑर्डर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये तुसी देखो मैं तुहानूं दसदी किद्दां आंदा, मतलब कि 1 आ ना 1 नूं आपां किन्ने टाइम अगे अगे ऐड करिए 1 दे विच 1 किन्नी वारी ऐड करिए कि वो 6 नाल डिवाइड हो जाए। 1 2 3 4 5 6 वारी ऐड करांगे सो यानी 1 रेज टू पावर 6 साढ़े को आइडेंटिटी एलीमेंट बनता। सो इस करके ऑर्डर कितना हो गया 6। जिदा हम 2 आ 2 मैं किन्नी वारी ऐड करा कि वो 6 नाल डिवाइड हो जाए 3 बार, ठीक है। सो 2 की पावर 3 आ जाना तो ये मतलब कि इक्वल टू आइडेंटिटी एलीमेंट बन जाना 6 2 की पावर 3। सो 3 ਇਹਦਾ की हो गया ऑर्डर। ये 3 है 3 मैं किन्नी वारी ऐड करा कि 6 बन जाए 2 टाइम 4 ਨੂੰ किन्नी वारी करा 4 + 4 + 4 12। सो 6 2 ਦਾ 12। सो इदा देखना तुसी 5 में कितने टाइम करा 6 टाइम 5 6 का 30 है ना तो वह ऑर्डर कितना हो जाएगा 6। सो इदा फाइंड आउट करना जो तुम पेपर च ना उन्हें इदा देता कि अंडर मॉड्यूलो 6 है तो ऑर्डर फाइंड आउट करो किसी एलीमेंट कोई भी कह देगा 3 का करो 4 का करो तो इदा फाइंड आउट करना। द ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट इन इनफाइनाइट ग्रुप may or may not exist but there do not exist infinite group in which order of element is। देखो कितनी वधिया गल की कि जो ऑर्डर एक एलीमेंट का इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जिस्ट हो भी सकता नहीं भी बट उत्थे कोई इनफाइनाइट ग्रुप नहीं होंदा। इदा का कोई इनफाइनाइट ग्रुप नहीं जिहदे ऑर्डर ऑफ एवरी एलीमेंट एग्जिस्ट हो, ठीक है। एग्जाम्पल है ग्रुप लिया x इज nth रूट ऑफ यूनिटी n बिलोंग्स टू n। ये सारे तुहानूं एग्जाम्पल दसी हुई है। जी इज इनफाइनाइट ग्रुप इन विच ऑर्डर ऑफ एवरी एलीमेंट ए वाले एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
सो एक तुसीं मेन एग्जाम्पल याद रखना, जिहड़ियां ज़्यादा लेंथी लगदियां छड्डी दो तुसीं। मेन मैं तुहानूं दसदी थ्योरम सिखानी है तुसीं मेन, जां मैं तुहानूं मेन जिद्दां एह् वाली दस्सियां, कुछ ज़्यादा इत्ते स्ट्रैस नहीं देनी आपां, ते डेफिनेशन जो कह रही है, ठीक है। तो इत्थे एन दा हो जाएगा ऑर्डर। इन ए फाइनाइट ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एलीमेंट एवरी एलीमेंट एग्जिस्ट, मतलब किसी फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर हर एलीमेंट का की करता एग्जिस्ट करता। मतलब देखो ये दसिया पेपर च आ सकता कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है ना वो हर एलीमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। इफ जी कोई फाइनाइट ग्रुप ऑर्डर वह एन दैन शो करना ए बिलोंग्स टू जी, दैन देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर आर सच दैट 1 लैस दैन इक्वल टू आर लैस दैन इक्वल टू एन ए रेस टू पावर आर। आर हम देखो इक्वल टू ही है, यानी वह की हो गया वो आर की हो गया, फिर ऑर्डर ले लेना आप, क्योंकि ये देखो 1 तो ये लाई भी कर रहा। मेन तुम ये गल याद रखियो कि हर फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर जोड़ा हर एलीमेंट का, मतलब तुहाडे कोल कोई ग्रुप फाइनाइट है, फाइनाइट ग्रुप का करवाया दसिया मैं तुहानूं, वह मतलब ऑर्डर जोड़ा होएगा वो हर एलीमेंट का एग्जिस्ट करेगा, हर एलीमेंट का कोई ना कोई ऑर्डर होएगा। इस मेन हैडिंग याद रखनी सी। लैट जी कोई फाइनाइट ग्रुप आ तो ए बिलोंग करता जी नूं, ये कोई एलीमेंट ऑफ ऑर्डर एन, दैन ए रेस टू पावर एन ई है, तो याद रखियो इफ एन इज़ डिवाइजर ऑफ एम। ये भी एक गल याद रखनी तुसीं, मतलब डिवाइजर होना एम का। इतने लास्ट देखो एम कि रिप्रजेंट होना, मतलब हम एम की है एन क्यू प्लस 0, मतलब कि ये डिवाइजर होना आपका। ये देखो लेट जी बी ए ग्रुप लैंड लेट ए बिलोंग्स टू जी ऑफ ऑर्डर एम, दैन ए रेस टू पावर के इज इक्वल्स टू एम पॉइंट एम कॉमा के। ये तुहानूं डायरैक्ट पूछा जा सकता पेपर च रिजल्ट। ये देखो ऑर्डर ऑफ एम ए एम हैगा, ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के एम हैगा, एम ते के दोनों का GCD 1 आ, ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के एम अपॉन एम ऑफ के। हुण तुहानूं पता ए 1 आ तो इनू लै लेना आप ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल टू एम। इफ कदों होगा जो ये चीज़ साढ़े कोल 1 होएगी, यानी ये चीज़ 1 होगी दैट इज़ फिर ही साढ़े कोल एम बचना, क्योंकि ये 1 हो जानी फिर सीधा पूछा जा सकता। ऑर्डर ऑफ ए पी दे कदों होना जो पी एक प्राइम नंबर आ, और ए दी पावर के हो जाना पी फॉर ऑल के इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सोन पी माइनस 1। ऑर्डर ऑफ ए दी इनवर्स ए दे बराबर ही रहिंदा, जे मैं एक्स इनवर्स ए एक्स लिख देवां वो भी ये बराबर है ना, ठीक है। ए बी दा ऑर्डर ऑफ बी ए उल्ट जाता, डायरैक्ट तुहानूं रिजल्ट जिहड़े पेपर च पूछे जा सकते, ये प्रूव नहीं करने आप। लैट ए बी कोई एलीमेंट आ ग्रुप दे सच दैट ए बी बराबर बी ए आ, दैन ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी हमेशा मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, क्लियर। जी कोई ग्रुप हैगा सच दैट ए स्केयर इक्वल टू ई, मतलब ए दा स्केयर कर दो ई आंदा, मतलब सैकेंड ਇਹਦਾ ग्रुप सैकेंड हो गया, फिर 2 हो गया ऑर्डर, ठीक है। ए दी स्केयर इक्वल टू ई आ रहा। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी शो दैट जी इज़ अबिलियन, जे ए स्केयर इक्वल टू ई हैगा जिन्ने भी एलीमेंट अंदर है, फॉर एवरी एलीमेंट फॉर ऑल एलीमेंट ए बिलोंग्स टू जी, जिन्ने भी एलीमेंट है जो स्केयर का इक्वल टू ई आ रहा है, मतलब जी की ग्रुप किहड़ा अबिलियन हैगा, क्लियर। जे किसी ने ज़्यादा प्रूफ वगैरह देखने देख लियो, बट सिंपल इन्हू याद करो ज़्यादा बेटर है। इन्हें ग्रुप जी ए दी पावर 5 तुहानूं ई देता, तब ए बी इनवर्स ए बी इनवर्स दिता बी स्केयर, ए बी बिलोंग्स टू जी, प्रूव दैट बी इज़ नॉट इक्वल टू ई, तो ऑर्डर ऑफ बी इज़ 31। सो बी स्केयर तुहानूं गिवन हैगा इत्थे ए बी ए इनवर्स, तुसीं पहला स्केयर कर दो पावर 4 हो जाएगी। फिर तुसीं ये देखो इत्थे प्रॉपर्टी हुंदी है एक्स इनवर्स ए एक्स दी पावर एन, एक्स दी पावर -1 इहदे नाल सिर्फ ए दे उपर आनी पावर, यानी अजे सेंटर वाला सिर्फ वही पावर आएगी, ठीक है। फिर उन्होंने लिखने का तरीका अगे किद्दां लिख लिया, ए बी ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए नूं इत्थे ए इनवर्स लिखता कोई फर्क नहीं पैना तुहानूं, ठीक है। असी क्यों किया, क्योंकि मैनूं उहदी वैल्यू गिवन है बी स्केयर, सिर्फ इस करके, ठीक है जी। बी स्केयर की वैल्यू गिवन है ना, वो देखो पुट करती है, बन गया ए स्केयर बी ए इनवर्स, फिर पावर स्केयर कर दो, फिर स्केयर करेंगे, फिर सेंटर वाले तो होएगा, फिर इस फॉर्म इनू की पुट कर सकते आप उसके अकॉर्डिंग पुट करी जाना, यदि फिर स्केयर कर देना 16, असी फाइंड की करना ऑर्डर ऑफ बी इज़ 31, फिर कर दो 32 तक चल जाओ, ठीक है। ये साढ़े को इक्वल टू बी आ गया, एक बी ना बी कट्टे जाना, बी दी पावर 32 इक्वल टू बी ई, सो बी एक बी ना बी इतने कट हो जाएगा, तो बी दी पावर 31 इक्वल टू ई, सो इतों पता लग गया हूँ पावर जी होंगी वही फिर वह की ऑर्डर, क्लियर। ये वाली एग्जाम्पल रहने दो, नेक्स्ट वाली नेक्स्ट देखो, फॉर इफ जी इज़ अ बिलियन ग्रुप ए बी दी पावर एन इक्वल टू ए दी पावर एन बी दी पावर एन, ये होएगा बस, ये याद रखना, रिजल्ट डायरैक्ट पेपर च आ सकते तुहानूं। लैट जी बी ए ग्रुप हैगा सच दैट ए बी दी पावर एन इक्वल टू ए दी पावर एन बी दी पावर एन, फॉर 3 एन कॉन्जिक्यूटिव एन है तुहाडे कोल इंटीजर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी शो दैट ग्रुप जी की आ अबिलियन, ये ग्रुप अबिलियन होएगा। एक ये याद ने ए बी दी पावर एन इक्वल टू ए दी पावर एन बी दी एन, ये होल्ड करता फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ये एग्जाम्पल दी अगे तुहानूं। ए बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, दैन जी इज़ की आ अबिलियन, किहड़ा ग्रुप हैगा अबिलियन हैगा। ये देखो यही वाला अगेन हुण मॉड्यूलो 5, हुण देखो 0 की है, देखो एडिटिव आ, एडिटिव के अंडर तुसीं हर एलीमेंट का ऑर्डर पता करना, ये हैगा
ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ 1, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਥਿਊਰਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ 1 ਦਾ ਦੇਖੋ, 1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, 5 ਟਾਈਮ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ 5। 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂ ਕਿ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, 2 2 4 2 5 2 6 2 8 ਤੇ 2 10, 5 ਟਾਈਮਸ 1 2 3 4 5, 5 2 ਦਾ 10, 10 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 5। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦਾ ਵੀ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰਾਂ ਕਿ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, 3 ਨੂੰ ਵੀ 5 ਟਾਈਮਸ, 3 5 ਦਾ 15 ਹੋ ਜਾਣਾ, 15 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਇਹਦੀ 4 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 5 ਟਾਈਮ, 4 5 ਦਾ 20 25 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 5 ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ, ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ 1 ਤੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨਾ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, G एक फाइनाइट ग्रुप है, A belongs to G, order of A divides order of G, that is order of element of a group is a divisor of order of group। ਜਿਹੜਾ order of element ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ order of a group ਨੂੰ। ਇਹਦੀ the order of every element in a finite group G is a divisor of order of a group, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਥਿਊਰਮ ਆ, ਥਿਊਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਫਿਰ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ 1 2 3 4 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ 1 ਤੇ 5 ਆ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਇੱਕ 5 ਨਾਲ ਇੱਥੇ 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਚਣਾ, 1 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਇਹ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਐਡਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਦ ਫਾਈਂਡ ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਗਰੁੱਪ, 4th रूट ऑफ यूनिटी। 4th रूट ऑफ यूनिटी देखो हम ये दिते आ, 4th रूट ऑफ यूनिटी लिख ले 1 -1 एटा कॉमा माइनस एटा। हुण 1 तो अंडर मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन मतलब वो 1 आइडेंटिटी एलीमेंट होएगा, आइडेंटिटी एलीमेंट का ऑर्डर कितना होंदा 1। हुण -1 की पावर मैं कितनी करा, -1 कह लो कितनी बारी आपस में मल्टीप्लाई करा कि मेरे को आइडेंटिटी एलीमेंट 1 आवे, वो कितना -1 × -1 1 आ गया, तो ये 2 टाइम्स। सो आयोटा मैं कितनी बारी आपस में मल्टीप्लाई करा तो 1 आवे, आइडेंटिटी एलीमेंट मैनू मिले 4 टाइम्स। इदी माइनस योटा भी कितनी माइनस योटा यदि भी पावर 4 कर दो तुम तो 1 आ जाना। सो जिथे वो मिले उही की हो जाना, वह ऑर्डर हो जाना। क्लीयर, सिंपल है, कुछ ज़्यादा औखा नहीं है। इदी ये देखो 1 -1 हूँ 1 नू 1 अंडर मल्टीप्लीकेशन है, 1 नू 1 मल्टीप्लाई इको बारी एक 1 का ऑर्डर वैसे आइडेंटिटी एलीमेंट होंगे। मल्टीप्लीकेशन देखो 1 का 1 रहना, तो एडिशन 0 का 1 रहना। ठीक है, ये फर्क होंगे 0 के आइडेंटिटी एलीमेंट जोड़ा देखो जो आप अंडर का एडिशन किया, ठीक है, आइडेंटिटी एलीमेंट 0 से ऑर्डर 1 रहना, मल्टीप्लीकेशन 1 का 1 रहना। हुण -1 में आपस कितनी बारी मल्टीप्लाई करा कि मेरे तो आइडेंटिटी एलीमेंट बने 2 बारी। ठीक है, स्मॉलेस्ट देखना होंगे, आप पढ़ा ही ना स्मॉलेस्ट इंटीजर है, सो इदा देखना। ए बी तो बी ए ग्रुप हैगे ने, ए एलीमेंट ऑफ ए, इफ द एलीमेंट ए बी एंड ए बी ऑफ ए ग्रुप हर एक का ऑर्डर 2 आ, दैन ए बी इक्वल टू बी ए होंगे। पेपर च इतना कि ए बी तो ए बी सारे जोड़े ऑफ ग्रुप है एलीमेंट ए बी एंड ए बी ऑफ ए ग्रुप हर एक का जो ऑर्डर 2 आ, तो उन्हें कहना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट, दैन ए बी इज इक्वल्स टू की होएगा बी ए होएगा। ठीक है, ये प्रूव भी किया, तुम देखना देख लियो, कुछ ज़्यादा औखा नहीं है। थ्योरम्स तुहानूं दसी कि थ्योरम ये वाली हैगी, ये वालियां करनियां। ठीक है, सारियां कर लैनियां। ग्रुप का थोड़ा आई तुम थ्योरम्स, क्योंकि जो मैं तुम्हें एक थ्योरम समझाने बैठा तो बहुत लेंथी हो जानी है, सो आप जस्ट इन्हों इदा ही रीड करना है। ठीक है, थोड़ा जिहा होर होएगा फिर ग्रुप खत्म हो जाएगा। आई थिंक ग्रुप ये खत्म कर दिया, आप सब ग्रुप शुरू कर लेना, थोड़िया वीडियोज़ ही खत्म कर देना, आप सारा ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, सो ये कर लेना। जो वीडियो पसंद है लाइक एंड कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।